हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो हम लोग जो है 9th क्लास को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसका जितना भी आपको नॉलेज होगा, जो भी हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, दैट वुड बी द स्कूल एग्जामिनेशंस, ठीक है। उनके लिए जो स्कूल एग्जामिनेशंस में जो आपका सिलेबस है उसको भी हम लोग कवर अप करते हैं। साथ ही साथ हम ओलंपियाड्स लेवल का इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं। तो जितना भी नॉलेज आपको स्कूल एग्जामिनेशंस को फाइट करने के लिए चाहिए और जितना नॉलेज आपको ओलंपियाड्स लेवल को फाइट करने के लिए चाहिए, वो पूरा हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड दैट इज द एम फॉर अस, लाइक वी डू नॉट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड. So we are providing you these lessons for free to everyone to watch, right? Everyone can watch these videos and definitely they can prepare themselves to that level. वो डेफिनेटली इन लेवल्स पे जा सकता है, ओलंपियाड लेवल का इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, स्कूल एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है फॉर फ्री, राइट? आप लोग बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ये लेक्चर्स देख सकते हैं. सो जॉइन अस, see that videos regularly of all the subjects definitely, and prepare yourself for the Olympiad level as well as for the school examinations, right? You can definitely do the hard work with us and then you are so set to go for your goals, right? So definitely you should join us, you should be with us and study with us, right? What we are dealing with the 6th, 7th and 8th Olympiads, and obviously for your school examinations, right? As well as we are preparing for the NTSC, NSCJS and PRMO. So this is a very much whole package for you all. Just you have to watch the videos, study hard, and that's it. All right. If you want any DPP or study material, you can definitely access them through the Telegram channel. All you have to do is to write this code TTB009 on the Telegram app, right? Then you have to join the channel, and that's how you are going to get all the DPPs, study material and the video information that when we are going live and when we are coming online, right? So you can definitely see that. That would be very much beneficial, and you can see this whole team will be helping you in achieving all your goals. We are very much ready to get you the information, all the information you needed for your goals and your targets, right? So definitely this team will be helping you. Now let's talk about something that is very much beneficial for you all, and that is if you want any DPP or study material, you can definitely access it through the Telegram channel. But we have already prepared some structured packages for you. If anybody is very much serious for their Olympiads level examination, for their school examination, they can join us. Definitely I welcome you all, right? So that is the thing. So we have prepared some packages. All right, and the important thing is about the packages is that you have to go first on this website. You have to go on www.talkingtextbooks.in. Over there you will be seeing such type of packages. There are two type of packages, ठीक है. कुछ हैं जो whole packages हैं. They are giving you the whole features, the complete package you can get, right? You will be getting comprehensive study material that would be at your doorstep. We will be sending you that. Recorded and live classes that will be provided to you. Homework submission feature for you. You have to submit your homework. Bi-weekly quizzes so that you can learn from every lecture and test yourself that how much you have gained from that lecture. Bi-weekly test papers, right? Periodic test papers. That is very much important so that they can give you the taste of the final examination. How much questions are coming? What is the level of the questions? So you are getting all such things inside the periodic test papers. So you will be revising and you will be rehearsing for the final examination. That is very much beneficial, right? So that you can handle all the pressure during the examination. Now you can see the test series package. इसमें जो है वो ही बच्चे बिल्कुल enroll करें जो खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, right? They want to test themselves. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़कर रखते हैं, but they want to know that how much they have gained. They want to test themselves, so they can definitely go for the test series. What you will be getting? You will be getting the periodic test papers. You will be getting recorded and live classes. You will be getting bi-weekly quizzes, and that is in a very much less cost, right? If you want 30% discount then on such packages, definitely then you can write a code CYLIVE. You can write this code CY Live. All right, so this is very much important if you want to get the 30% discount on such packages. All right, you can definitely apply this code on both the packages and you can get 30% discount.
you will be forwarded on all the options to choose by which you can pay, right? Definitely after clicking on the buy package, first you have to click on buy package and then you will be forwarded and you can choose all such types of the payment options, right? You can say if you have any query regarding anything like what are the benefits of joining the such courses, what will be the benefits, right? So you can definitely call us on this number. It is important. If you have any query regarding anything, you can definitely ask on this number and you can apply this code and definitely you will be getting 30% discount on the packages, right? So this was the important thing I wanted to tell you. Now let's start our lecture and let's study about velocity and its types. In the last lecture we have studied about the speed, right? The types of speed and how to calculate all that. Now we will be studying the velocity and its type, then we will be watching the difference between the speed and velocity, and then we will be doing some questions, right? So today is this lecture. Now just take out your books, take out your copies. All right, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will definitely be revising things, right? That is important because we have just started studying. So it's very much important, right? Now let's start. Let's talk about what is speed, right? Let's talk about what is speed. वो हमने जो बोला था that speed का मतलब होता है how much fast you are going, how much slow you are going, right? That is speed, right? कितना आप फास्ट जा रहे हैं, कितना आप स्लो जा रहे हैं, ये आपको बताता है आपकी स्पीड, राइट? लेकिन आप एक डायरेक्शन में कितना जा रहे हैं, जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास यूनिट भी होगी एंड इसके पास डायरेक्शन भी होगा, राइट? तो जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपने कितना ट्रैवल किया, कितना स्पीड है आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बोल देते हैं उसको क्या? वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे योर वेलोसिटी इन ईस्ट, या फिर यू कैन से 10 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो जैसे ही डायरेक्शन इंक्लूड हो गया वैसे ही हमने इसे क्या बोल दिया? वेलोसिटी बोल दिया। सो वी कैन से स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम यहाँ डिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? दैट्स वाई जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जब हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया, we got the displacement and that's how we got to know about the velocity. तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है? नंबर वन फॉर्मूला जो आपको मिलेगा दैट वुड बी, देखेंगे नंबर वन फॉर्मूला जो आप वेलोसिटी का लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? आप जो भी डिस्प्लेसमेंट आपने अगर कैलकुलेट किया है तो आप उसको डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है? और जो दूसरा फॉर्मूला आप वेलोसिटी का लिख सकते हैं वो है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। जब हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया वी गॉट डिस्प्लेसमेंट, सेम थिंग, ठीक है? डिवाइडेड बाय time. So that's how we calculate the velocity. आप इसका SI यूनिट देख सकते हैं, इसका SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है, राइट? डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी तो क्या होता है वहाँ पर? मीटर ही होता है, डिस्टेंस का यूनिट ही होता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। सो वी कैन से दैट कि भाई जो SI यूनिट होती है वेलोसिटी का वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यू कैन डेफिनेटली से भाई अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें कि भाई उस डायरेक्शन में मैं कितना स्पीड से जा रही हूँ, राइट?
सो दैन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। तब हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। जब हम सिर्फ स्पीड की बात करते हैं तो मतलब कि मैं कितना फास्ट और स्लो जा रही हूँ, लेकिन डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी तो इट बिकम्स वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को जोड़ दिया तो वी गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप फटाफट से इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब हम जो है देखते हैं कि भाई कितने तरीके की वेलोसिटीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने स्पीड के बारे में बात किया था, भाई कितने तरीके की स्पीड्स हमको देखने को मिलती हैं, तो वो हमने टाइप्स ऑफ स्पीड डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब स्पीड की ही बात करें, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि भाई उस डायरेक्शन में कितना स्पीड है, तो दैट मीन्स उस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 टाइप, जिसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब अगर कोई बॉडी, ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर करती है सेम टाइम ऑफ इंटरवल में, तो दैट मीन्स इट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि भाई जब कभी भी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब एक डायरेक्शन के अंदर, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर, लेट्स से इट इज इन ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है, दैट वुड गिव यू द कांस्टेंट वेलोसिटी। आपका पूरे जर्नी में अगर आप यही काम करते गए कि भाई फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आपने फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स आप कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट विल गिव यू द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड होना जरूरी है, ठीक है, दैन इट इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेट्स से एग्जांपल कि भाई अ कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड इन ईस्ट, सो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि भाई एक डायरेक्शन में इतना जो है फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड जो है स्पीड उसका है, सो दैट्स हाउ इट इज नोन एज दी, वी कैन से द वेलोसिटी। अब देखते हैं, मान लीजिए कि आपने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, ठीक है, एंड यू मूव हियर, यहाँ तक आप जो है गए हैं, आपने ए से जर्नी स्टार्ट की है, आप बी तक गए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, अब ये जो एक डायरेक्शन है हम इसे डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई ईस्ट की तरफ है, और आप उसी डायरेक्शन में जो है चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप चलते जा रहे हैं तो आपने क्या किया है कि भाई आप जा रहे हैं 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर, फिर अगला 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर, अगला 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर, अगला 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर, अगला 10 मीटर 1 सेकेंड के अंदर। सो यू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम इंटरवल भी फिक्स है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो ये एक एग्जाम्पल है कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हैं जब आपने कवर किया है सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, राइट, और वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन भी है, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, आपको कभी भी इस टाइम पर, लेट्स से जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेट्स से पहले आप 10 मीटर जो आपने कवर किया वो ईस्ट में किया, देन अगला 10 मीटर लेट्स से आप साउथ में चले गए, सो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, बिकॉज आपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी को बताने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, सेम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रैवल एंड सेम अमाउंट, यानी सेम डायरेक्शन, नॉट द अमाउंट बट डायरेक्शन।
ये तीन चीजें अगर सेम हो जाती हैं तो दैट मीन्स यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुई भाई, आपने क्या किया कि अब आप जो सेम डिस्टेंसेस चल रहे थे वो अब बदल गए। ठीक है, सेम नहीं रह गए। लेट्स से कभी 8 मीटर 1 सेकेंड में हो रहा है, कभी 2 मीटर हो रहा है, कभी 5 मीटर हो रहा है। सो यू आर नॉट इवन यू कैन से एक डिफरेंट स्पीड पे आप जा रहे हैं। तो आप किसी भी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, आप किसी भी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे टू केसेस में। नंबर 1, जब आप अपने स्पीड को चेंज कर रहे हैं, जब आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देयर कैन बी 2 केसेस जिसमें आप बोल सकते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर, यू कैन से दैट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे दैट द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है वो आपको ये मिल गया कि भाई आप जा रहे हैं, लेट्स से आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम दिस ए पॉइंट एंड यू वेंट अप टू फ्रॉम बी पॉइंट। ठीक है, आप ईस्ट में ही जा रहे हैं, आप लगातार ईस्ट में ही जा रहे हैं। लेकिन इस बार आपने क्या किया, आप पहले 8 मीटर चले 1 सेकेंड में, फिर आप चले भाई 2 मीटर 1 सेकेंड में, फिर आप चले गए 3 मीटर इन 1 सेकेंड, देन आप अगेन चले गए 5 मीटर इन 1 सेकेंड, देन आप चले गए 1 मीटर इन 1 सेकेंड। सो ये जो वेरिएशन आ गया है, अब जो डिस्टेंस, जो सेम अमाउंट का डिस्टेंस होना चाहिए था बट अब वो सेम नहीं है। इस केस में क्या होगा, कभी 8 मीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी 2 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, कभी 3 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, कभी 5, कभी 1। सो यू आर चेंजिंग द डिस्टेंसेस। ठीक है, लेकिन आप अमाउंट ऑफ टाइम सेम ही ले रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। पर आप देखिए यहाँ पे 2 चीजें सेम है, यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है और यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, पूरे जर्नी में आपका डायरेक्शन सेम था। ठीक है, बट स्पीड इज वेरिएबल। ठीक है, जो स्पीड है वो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो केस है वो ये केस है कि भाई जो डायरेक्शन है वो सेम है, एज इट इज है, बट जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का, वो ये है कि भाई आप सेम स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, आप सेम स्पीड से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, अपना स्पीड आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड से ही आप जा रहे हैं, लेकिन आप हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लेट्स से आप 10 मीटर पर सेकेंड से ही गए हैं। ठीक है, आपने ए से स्टार्ट किया, पहले आप गए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, ईस्ट में, फिर आप चले गए भाई साउथ में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आप चले गए वेस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर आप चले गए फिर से साउथ में 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बार बार स्पीड तो सेम रख रहे हैं,
है ना, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन आप अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हुआ। आपका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि भाई डायरेक्शन इज वेरिएबल। ठीक है, डायरेक्शन इज वेरिएबल, चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो तो सेम है। तो इस केस को भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इस केस को भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, मतलब यहाँ पर चेंज होना चाहिए। अगर एक भी फैक्टर चेंज हो गया, लेट्स से आप डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर रहे थे लेकिन टाइम इंटरवल चेंज कर दिया, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, स्पीड सेम रखते हैं, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप स्पीड सेम रख देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने के कुछ केसेस हैं। अब इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, जब आप एक सर्कल में घूम रहे होते हैं, तभी भी आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, बिकॉज आप लगातार वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है चेंज करें, भले ही आप फिर सेम स्पीड से चले, भले ही आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करें, लेकिन आप हर पल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, तो हमेशा सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को और डेफिनेशन को नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो मतलब आप डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप स्पीड सेम रखते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हैं। अगर आप स्पीड सेम रखते हैं पर डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो भी आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी में मूव कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर अपना स्पीड चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, व्हाट कैन बी द एवरेज वेलोसिटी। देखेंगे, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग करते हैं कि जब कभी भी जैसे लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस होता है, राइट, एंड टोटल टाइम होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं खुद से ही कि जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल सही बात है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो दैट वुड गिव यू द एवरेज स्पीड, राइट। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन का भी होना जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, तो डायरेक्शन होना भी जरूरी है, राइट। तो उसके लिए हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस की जगह पर टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भाई आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, तो दैट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, और ये क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ही है ना। तो अब आप इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से, बिल्कुल। ठीक है, अब आप इसे देखेंगे कि हम एवरेज वेलोसिटी को किस सिंबल से बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग भाई देख सकते हैं दैट इट इज डिनोटेड बाय V
एवरेज और एरो, बिकॉज ये वेक्टर है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, राइट। हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। व्हाट कैन बी द फॉर्मूला, हम लोग लिखेंगे भाई वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट का यू कैन से डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, वही एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन वुड बी द सेम, जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी हमें मिल गया। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो आप ऐसा डेफिनेटली बता सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि भाई उस मोमेंट पे आपका क्या वेलोसिटी है, उस एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका क्या वेलोसिटी है। अगर मैं बोलूँ कि भाई एग्जैक्ट 10:35 पे आपका क्या वेलोसिटी था, तो दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या वेलोसिटी है, दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखेंगे कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये किसके इक्वल होती है। देखेंगे इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैं, जैसे मैंने एवरेज स्पीड को लिमिट किया था, वैसे ही अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को भी लिमिट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी मोमेंट पे होने वाला वेलोसिटी हमको मिलेगा, राइट। कैसे देखेंगे, ये तो आपको पता चली गया, हमेशा हर टाइप का वेलोसिटी वुड बी द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई वेलोसिटी के साथ तो जो डायरेक्शन है वो उसको तो लगना ही लगना है, राइट। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मतलब है वो ये होगा दैट यू आर गोइंग टू लिमिट द टाइम, यू आर गोइंग टू लिमिट द टाइम, ठीक है। उसमें आपने जो अपना s/t है तो दैट शुड बी गिव यू द ds/dt। देखेंगे ये जो हमने एवरेज जो देखा है ds/dt, ठीक है, जो हम देखेंगे ये है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको क्या वेलोसिटी है वो आप ये बताएगा ds/dt। ठीक है, ये आप लोग डेफिनेटली आगे जाके पढ़ेंगे जब आप डिफरेंशिएशन की बातें करेंगे तब। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने एवरेज को बिल्कुल वी कैन से कि भाई जब हमने उसको बिल्कुल टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा बना दिया, जीरो की तरफ लेकर चले गए, मतलब उसको बहुत 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 छोटा बना दिया, जस्ट लाइक बहुत ही कम, लाइक वी कैन से 1 सेकेंड और उससे भी छोटा, लाइक यू कैन से मिली सेकेंड, है ना। जब हम टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देंगे तब जो हमें वेलोसिटी मिलेगी दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब जब ये डेल्टा टी जीरो की तरफ जाता है तब हमें एग्जैक्ट एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। सो यू कैन डेफिनेटली राइट दिस डाउन। ठीक है, आप फटाफट से इसको लिख लें। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना क्विकली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा हम लोग कैसे कर सकते हैं देखेंगे। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, क्योंकि हम जब वेलोसिटी से डील करेंगे तो ये यूनिट्स तो हमें पक्का मिलेंगी, क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर भी होगा, मीटर पर सेकंड भी होगा, तो आप कितनी जल्दी उसको चेंज करेंगे, ये आपका टाइम सेव करेगी कंपटीशन एग्जाम को जब आप फाइट कर रहे होंगे तब भी, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी, राइट। तो हाउ शुड यू डू दैट, जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, आपको क्या करना है, क्वांटिटी को 18/5 से
मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है और आपको 60 मीटर पर सेकेंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, आपको 60 को फटाफट से 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देख लेंगे कि भाई ये तो क्या हो गया, 12 टाइम्स कट गया। अब 12 × 18 वुड बी योर फाइनल किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुरंत की तुरंत वहीं पर खत्म। तो आपको सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कब? जब आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे जब आपको किलोमीटर पर आवर से, मतलब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तब आप इसको कैसे करेंगे? तब आपको क्या करना है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से कि भाई 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको आपको जो है कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपको क्या करना है, सीधे इसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा कि भाई 5 2 हो जाएगा, तो इट वुड गिव यू द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इट वुड डेफिनेटली गिव यू अ वेरी मच टाइम आपका सेव करेगा भाई, सेकेंड सेव कर लेंगे, बहुत सारे जो है आप इजीली क्विकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका मीटर पर सेकेंड में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को जब डील कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हम डील कर रहे होते हैं, तो हम दो डायरेक्शंस को लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। राइट, जब हम लोग ऑरिजिन की, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है किसी भी उसमें, लेट्स से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें हम स्ट्रेट मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल ऑरिजिन से, यानी आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस होगा, दैट मीन्स आपका वेलोसिटी भी प्लस होगा। राइट, जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस वक्त आप बोलेंगे कि भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी भी होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो हमारा जो v है, जो वेलोसिटी है, वो भी पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो हमारा जो ये v है वो भी नेगेटिव होगा। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन आपको मिलेगी वेलोसिटी की। ठीक है, ये जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये हम किस केस की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ये और 2D मोशन में काम नहीं करेगा। राइट, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। आप इन्हें फटाफट से लिख लो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में? वैसे तो हम डायरेक्टली स्पीड को में डायरेक्शन इंक्लूड करके उसको वेलोसिटी बना सकते हैं। राइट, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो स्पीड होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस वुड बी द स्पीड। राइट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, उसी के साथ जो है डायरेक्शन को ऐड ऑन कर दिया, तो दैट वुड गिव मी द वेलोसिटी। राइट, तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर देंगे, अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम नॉर्मली सिर्फ पोजीशन का चेंज ही देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया,
डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों भाई, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो मच इजी, राइट। और हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके साथ डायरेक्शन इंक्लूडेड है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। नाउ देखेंगे फोर्थ पॉइंट, स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा एंड टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स हमेशा स्पीड भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। अगर आप मूव कर रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, कुछ टाइम तो लगा है, दैट्स वाई आपका कोई ना कोई स्पीड तो है पॉजिटिव, राइट। अब क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, राइट। इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, फॉर मूविंग बॉडी इट विल नेवर बी जीरो, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा, एक मूविंग बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा स्पीड जीरो, राइट। एंड लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा तो यस हमारा जो वेलोसिटी है वो जो है जीरो हो सकता है, इट मे बी जीरो, ऑलराइट। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हम फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है ट्राई करना है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, कितने बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से करो, है ना, और देखते हैं कि कितने बच्चे जो है इसको सही सही कर पाते हैं। ऑलराइट, चलो अभी तक काफ़ी बच्चे कर चुके होंगे, है ना। जो नहीं कर पाए हैं हमारे साथ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले तो हम लिखेंगे सारी गिवन चीज़ें जो भी हमको अवेलेबल हैं, फटाफट से हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज यू वॉक अक्रॉस ए रूम ऑफ लेंथ 9 मीटर, 9 मीटर के रूम को हमें चलना है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स हमको जो वेलोसिटी है, ठीक है, पहले तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं भाई, कितना जो है डिस्टेंस हमको गिवन है। तो डिस्टेंस वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 9 मीटर, ठीक है, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कितना है 1.5। दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1/2, 1.5। तो वी कैन से भाई 1.5, राइट, वी कैन से, तो लेट्स राइट दैट 1.5। तो इट वुड बी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द टाइम यू विल टेक टू मूव अक्रॉस द रूम। और उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे, नहीं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे 1.5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम फटाफट से क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वुड बी द सेम, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर देंगे। क्यों करा हमने ऐसा, बिकॉज टाइम हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इसी की वजह से हम लोग ये करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना है 1.5 इंटू 5/18, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय टाइम करना है तो दैट शुड बी हाउ मच, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय हमको करना है, नॉट एनी डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड का साइन तो हम हटा देते हैं, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा 2, ऑलराइट, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो इट वुड बी 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। दिस इज द 5, आप लोग नहीं जो है देख पाएंगे तो 0.75 इंटू 5, क्योंकि जब हमने 2 से 1.5 को जो है डिवाइड किया तो व्हाट वी विल बी गेटिंग कि भाई यहाँ पर 2 7 14 है, ऑलराइट, एंड देन 5, तो 0.75 इंटू 5 हो गया, राइट। तो अब हम इसको फाइनली जो है कर लेते हैं, इट वुड बी 5 इंटू 5 25, राइट। तो इट वुड बी 3.75 सेकेंड्स वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको जो है क्वेश्चंस को देखना है। अब आप फटाफट से इसको नोट कर लो। ओह नो, हमने यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोगों ने की है, ठीक है। हम लोगों ने आज स्मॉल सा फॉर्मूले में पूरा मिस्टेक हमने कर दी है, ठीक है। लेट मी राइट दैट अगेन, ठीक है। मैं इसे अभी वापस से जो है लिखती हूँ, ये मैंने मिस्टेक किया है। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, तो इट शुड बी हाउ मच, 9 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 5/18, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 9 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 5, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग व्हाट, वी विल बी गेटिंग एटलीस्ट तो इट शुड बी ऑलमोस्ट 21 पॉइंट समथिंग, 21.7 सेकेंड्स। ये जो है हमें हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 21.7 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है मिस्टेक किया था कि हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी और स्पीड को, ठीक है। लेकिन टाइम ऐसे नहीं मिलता, टाइम हमें तब मिलता है जब हम स्पीड को, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको अगर हम वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तभी जाके हमको मिलेगा टाइम, right? So that what the mistake was, and now this is the correct thing. 21.7 is the correct answer. All right. Now let's move on to the next question. ये एक बहुत ही easy और बहुत ही अच्छा question है, ठीक है। इसको करने का जो आपका टाइम है वो बहुत ही कम आपको मिलना चाहिए, because it is very 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 easy. ठीक है, तो अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, टाइम तो आपका बहुत ही कम है। Now let's see, a body is moving with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड से जो वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी होगा दैट वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला है इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म
What will be the velocity after 10 सेकेंड? 10 सेकेंड्स के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा अगर उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट मोशन से जा रहा है तो दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, राइट? तो आफ्टर 10 सेकेंड्स भी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रिक दे दी, आपको यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश की गई है कि भाई यहाँ पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। जो बच्चा इस यूनिफॉर्म पे ध्यान नहीं देगा वो फिर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने बैठ जाएगा कि भाई 10 सेकेंड्स के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, राइट? तो उस वक्त क्या होगा, छोटी सी मिस्टेक के साथ आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक शब्द क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको स्टडी करो एंड देन आप अपने सोल्यूशन पे पहुंचो, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसमें जो आपको बताना है वो बिल्कुल आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक यहाँ पे यूज है, जो भी बच्चा इसको समझा पाएगा या फिर देख पाएगा कि भाई ये क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन चल रही है। उषा जो है 90 मीटर लॉन्ग पूल से जो है स्टार्टिंग पोजीशन है जाती है और लौट कर जो है यहाँ पर वापस आ रही है, ठीक है? शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो पहले जाती है, लेट्स से दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। तो पहले वो क्या करेगी, ए से बी तक जाएगी, 90 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर बी से वापस ए पर आ जाएगी, 90 मीटर फिर से ट्रेवल करेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी हाउ मच? जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 90 प्लस 90, ठीक है? तो इट शुड गिव यू दी 180, है ना? तो अब आपके पास 180 मीटर डिस्टेंस तो आ गया। कुछ भी टाइम के बारे में नहीं बोला है कि भाई बोल दिया सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसने 180 मीटर पर इन 1 मिनट जो है उसने ट्रैवल किया, बट आपको यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूछा है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन एंडिंग पॉइंट ही बन जाए तो क्या होगा? क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा? तो इसी वजह से यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वही यहाँ पे एंडिंग पॉइंट बन गया है, इज सेम एज एंडिंग पॉइंट, ठीक है? और इसी की वजह से क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, ऑलराइट? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया है जीरो, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी क्या हो गई है, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे थे वो भी हो गई है जीरो। सो हमारा फाइनल आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू शुड नो। हमें क्या करना है, वेलोसिटी के टाइम में हम लोग को ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? नॉट द डिस्टेंस, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है? आपको कोई भी कमेंट है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।